Good morning, students. I, Sushma Kataria from Suru School Bhiwadi, and today in this video we'll discuss about the 12th class first chapter, third level, and we are doing part 2 of it. In our first part, we have discussed that the life about Charlie and what kind of situation he was facing nowadays at the present condition. He was having a very stressful life, and because of that reason he tried to find out a third level. He said that I in Grand Central Station there are only two level according to the authority and according to the other persons, but he said that I visited the third level and said there are a third level in Grand Central Station. So in this video we'll discuss the how he visited the third level and how he was able to reach at third level. So Charlie kept walking in the quiet corridor, angling left and slanting, drawing toward until they came out to the third level of Grand Central Station. Okay, he just keep moving and moving and moving, and he just these are the things which he saw. He reaches the third level at it completely different from the two familiar level. Okay, finally he was able to reach at third level. There were small room with a fewer ticket counter and train gates and wooden information booth. Okay, so these are the description of third level, which kind of things he was see over there. Discovering brass pit okay, जो थूकदान थे यानी कि जो डस्टबिन आप इसको जनरली बोल सकते हो, वो कैसे थे, वो ब्रास के थे. फ्लिकरिंग गैस लाइटनिंग, जब जो स्ट्रीट लाइट्स थी वो इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट नहीं थी, वो गैस के जो फ्लिकर कर रहे थे यानी कि फ्लिकर करते हुए गैस लाइट थी. एवरीवन ड्रेस्ड like 1890s with old fashioned beard. Okay, साइड बर्न्स मतलब जो कान के साइड पे जो बाल होते हैं मेल के, वो उनको साइड बर्न्स बोलते हैं. वो उनके मूँछों के स्टाइल, वो सारी जो चीज़ें थी वो कैसी थी, बहुत ही 1890s की टाइम में जो जिस तरह के फैशन ओल्ड फैशन के कपड़े लोग पहनते थे. और एवरी पर्सन वॉज दैट काइंड ऑफ ड्रेस. ओके, इंजन विद फ्यूनल शेप्ड स्टक, मतलब उनके जो इंजन थे वो किसके थे, फ्यूनल के थे. ओके, there was a fewer ticket counter, flickering open flame gaslight, and people were dressed like 18. He noticed that he on the date of the newspaper. ठीक है, वो उन एक और चीज़ वो नोटिस करता है, द वर्ड प्रिंटेड ऑन जून. एक न्यूज़पेपर वहाँ पे होता है, जो लेटेस्ट न्यूज़पेपर होता है वहाँ का वो होता है द वर्ड प्रिंटेड ऑन जून 1894. क्लियर, उनका वहाँ पे दिस वाज द थिंग बाय विच ही वाज कंफर्म दैट ही वाज ऑन द डिफरेंट लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. और जो द वर्ड न्यूज़पेपर है वो बहुत टाइम पहले ही पब्लिश होना बंद हो गया था, और यही वाला न्यूज़पेपर उसने जो लाइब्रेरी थी वहाँ पे उसने उस न्यूज़पेपर को देखा था, और वहाँ से उसने वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी कि जो द वर्ड न्यूज़पेपर है इट वाज कम्प्लीटली जो पब्लिश है, इट वाज द पब्लिशिंग वाज स्टॉप्ड ओवर लॉट्स ऑफ ईयर बिफोर. क्लियर. चार्ली गोज़ टू द टिकट फॉर गैल्सबर्ग. ओके, अब वो चाहता था कि क्यों ना मैं यहाँ से अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए गैल्सबर्ग की टिकट ले लूँ, क्योंकि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ पे दोनों लेवल्स पे गैल्सबर्ग की कोई भी टिकट नहीं मिलती थी. सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ही वांट्स टू परचेज अ टिकट फॉर गैल्सबर्ग फॉर हिम एंड फॉर हिज वाइफ. Galesburg, you should know what the Galesburg, why he want to be there. Galesburg is a wonderful town, big houses, huge lawns, plenty of trees, people with lots of leisure time, मतलब बहुत खाली समय होता था लोगों के पास. wanted to visit Galesburg with his wife Louisa. अब देखो वो क्या है, क्यों दिखाता है कि जो गैल्सबर्ग में कौन रहते थे, उसके ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे, एंड वेन एवर देयर वाज अ हॉलीडे ऑफ हिज एंड ही यूज्ड टू गो देयर. ओके, एंड वहाँ पे जो घर थे वो बहुत बड़े बड़े घर थे, बहुत ही ह्यूज लाइन, और लोगों के पास बहुत इनफ टाइम होता था. इन इवनिंग what happened, they all the male persons sitting together, they are consuming tobacco sticks, and they are having a chit chat, they are playing cards with all them. And the female persons of the family used to get together, they are cooking food for the family, and they are singing songs, and that means every person was enjoying their life. They have enough time to
spend with each other. But nowadays he was having not even a single time to spend with other persons. So he wanted to live that kind of life which he used to saw in the Galsburg. Clear? So this is the reason why he wants to be there. As he counted the money to buy 2 tickets, the clerk said that when the clerk says that this is not currency and he will be put behind the bars. अब देखो क्या हुआ, जो करेंसीज थी वो जो चार्ली के पास जो करेंसीज थी वो लेटेस्ट थी, और जो 1890s में जो करेंसीज चलते थे उनका स्टाइल डिफरेंट था. तो जो टिकट काउंट, जब उन्होंने चार्ली जो टिकट काउंटिंग के टिकट खरीदने के लिए जो करेंसी को गिन रहा था, तो उन्होंने कहा कि अगर तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की देन आई विल पुट यू बिहाइंड द बार्स, मतलब मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा. ही रियलाइज दैट ही नीड टू हैव ओल्ड करेंसी टू बिल टू गो टू डू सो. मतलब अगर उनको टिकट खरीदनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपने करेंसी को एक्सचेंज कराना पड़ेगा पुराने करेंसीज के स्टाइल में. क्लियर? सो अब जब उसको ये लगता है कि जो टिकट काउंटर वाला उसको पकड़ने की कोशिश करता है, ही जस्ट स्टार्ट रनिंग आउटसाइड एंड ही रीच टू द सेकेंड लेवल. वो भागने लगता है और वो अपने दूसरे लेवल पे पहुंच जाता है. नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच ही एक्सचेंज $300 फॉर. तो क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट अब उसको पता चल गया कि मुझे अपनी करेंसी को एक्सचेंज कराना पड़ेगा, तो $300 जो हैं वो ओल्ड स्टाइल के बिल्स में चेंज करा लेता है, और उसको कितने मिलते हैं, $200 मिलते हैं. ओके, तो इससे कि वो थोड़ा एक्सपेंस भी होता है, लेकिन वो उसको लगता है कि द लाइफ इन गेल्सबर्ग इज़ वर्थ इट. So the loss doesn't bother much as he believes that in Galsburg everything will be cheaper and then he can manage even the small amount. Okay, but he could not never again find the corridor leading to the third level. लेकिन वो लाइफ में कभी भी उसको दोबारा से कभी भी थर्ड लेवल का जो कॉरिडोर है वो नहीं मिला. ठीक है, उसने अपनी करेंसी का नुकसान भी कराया. क्यों? क्योंकि उसको क्यों फ़र्क नहीं पड़ा, उसको लगता है क्योंकि उस टाइम पे सारी चीज़ें बहुत सस्ती हैं, तो यहाँ इन चाहे वो कम पैसे लेकिन वो बहुत ईजिली उसमें मैनेज कर लेगा. His wife Louisa worried about after knowing that all his end asked him about look for third level and any further. तो यहाँ पे जो लुइसा उसकी वाइफ है वो बहुत वरिड हो जाती है. उसको लगता है कि भाई चार्ली को मना करते, देयर इज़ नो एनी फर्दर, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है. सडनली चार्ली रियलाइज दैट हिज फ्रेंड सैम has disappeared. Now he and his wife keep looking for the third level and in the weekends. मतलब क्योंकि जो वाइफ है वो उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहती, तो उसको लगता था कि भाई शायद वो इसलिए मेंटली स्ट्रेस में है. सो शी ऑलवेज ट्राई टू हेल्प हिम इन अ वे, क्योंकि वो कभी मानना नहीं चाहता था कि यहाँ पे थर्ड लेवल नहीं है. सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न उनकी वाइफ जो भी है उसको हेल्प करती थी. वन नाइट वाइल लुकिंग इनटू द स्टैम्प्स कलेक्शन ही फाउंड अ फर्स्ट डे कवर. अब जैसे हमने पहले भी डिस्कशन किया था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट डे कवर, तो एक बार वो ऐसे ही ढूंढ रहा था तो उसको मिलता है वो फर्स्ट डे कवर मिलता है. और व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशू, अब यहाँ पे वो दिखाया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट डे कवर. a blank paper in themselves and then return unwrapped letter with the postmark proof with date. This is envelope is called first day cover. जब भी कोई स्टैम्प इशू होती थी तो वो अपने आप को ये एक ब्लैंक पेपर लिखकर एड्रेस पे अपनी एड्रेस पे मेल करते थे, और जिससे कि उस पर वो स्टैम्प लग जाती थी. एंड ही वॉज हैविंग अ फर्स्ट डे कवर ऑफ इट. Charlie comes across a letter that was there never before earlier. अब देखो जो वो फर्स्ट डे कवर था वो किसके थे, वो उसके ग्रैंडफादर के थे. जैसे हमने डिस्कशन किया था फर्स्ट पार्ट में, जो ग्रैंडफादर है उनको भी स्टैम्प कलेक्शन का शौक़ था. तो वो क्या करते थे, वो उन्होंने भी ऐसे कुछ फर्स्ट डे कवर्स जो हैं वो किए हुए थे. The bearers of postmarks had faded 6-cent stamps and picture of the president Garfield. The envelope was sent on July 1894. ठीक है, वो जो लेटर था वो कब का था, जुलाई 1894 का था. टू चार्ली ग्रैंडफादर इन गेल्सबर्ग. ओके, एंड एड्रेस टू चार्ली. अब देखो गेल्सबर्ग का था और वो एड्रेस किसका था, चार्ली का प्रेजेंट एड्रेस. अब इसमें एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन अराइज हो जाता है कि जब उस टाइम पे वो हमेशा क्या करते थे फर्स्ट डे कवर में, दे यूज़ टू पोस्ट अ ब्लैंक पेपर टू देम. क्लियर? वो ब्लैंक पेपर पोस्ट करने की कोशिश करते थे और वो ब्लैंक पेपर पोस्ट करते थे. एंड सडनली ही फाइंड, अब वो उसी वाले उसको खोलते हैं जो ग्रैंडफादर को मिला था. वो देखो वो पेपर वो वैसा ही कहता है कि ना, जो एनवेलप था वो बहुत ही ज़्यादा पुराना था.
तब उनको एक लेटर उसके अंदर मिलता है। वो लेटर में क्या लिखा होता है, वो किसका होता है, ठीक है, वो होता है सैम ने लिखा होता है। वो लेटर किसने लिखा होता है, सैम ने। इट वॉज फ्रॉम सैम, जब उसको लगा था कि जो सैम है कुछ दिनों से डिसअपियर हो चुका है। आई गो टू विशिंग दैट दीज आर द लेटर। इस पूरे लेटर में क्या लिखा हुआ है कि मैं, जैसे ही आपने बताया था कि मैं उसी रात को 3rd लेवल को सर्च करने के लिए निकल गया था, एंड आई found that you are correct, absolutely correct on your point that the 3rd level is there, and I reached there and I want that you and your wife should come to Galsburg. आप जल्दी ही गैल्सबर्ग में आ जाइए, and I'm waiting for you. So इस तरीके से वो चार्ली जो है वो बता देता है कि सॉरी सैम जो है वो बताता है कि मैं 3rd लेवल पे पहुंच गया हूँ। When Charlie goes to the stamp and coin store, he found that the Sam exchanged $800 for the old currency bills. Maybe establish his business. अब देखो वो यहाँ पे क्या कहता है कि जब अब क्योंकि उसने पैसे चेंज कराए थे तो उसने क्या देखा कि जो सैम है उसने भी करेंसीज को एक्सचेंज कराया है, करेक्ट। अब देखो एक कंडीशन यहाँ पे आ जाती है कि जब वो लेटर जो है वो फर्स्ट रिकवर कब का है, जुलाई का, 1894 का, करेक्ट है। लेकिन अब यहाँ पे जो टाइमिंग है वो कुछ और दिखाया है। तो एक चीज़ समझ, जो सैम है वो उसका प्रेजेंट कैरेक्टर है, तो वो लेटर उसके पास कहाँ से आई। तो इस सिचुएशन से एक आइडिया लग जाता है कि जो सैम है वो एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, और अपने पॉइंट को प्रूफ करने के लिए जो चार्ली है उसी ने वो लेटर अपने ग्रैंडफादर के वो फर्स्ट डे कवर्स में इंस्टॉल किया था। क्लियर। सो इससे क्लियर पता चलता है कि जो सैम है वो जो चार्ली है उसको कभी भी 3rd लेवल दोबारा मिला ही नहीं। ओके, क्लियर। सो दिस इज जो ये पूरा सोर्स है 3rd लेवल, एंड ये जो कलेक्शन का पोर्शन है, दीज आर द सोर्स टू एस्केप। ये सोर्स है एस्केप का प्रेजेंट डे सिचुएशन से बचने के लिए। क्लियर। सो दिस इज द एंटायर स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दिस। Thank you.